A very good morning, dear students. As I have already told you that our this subject is divided into two parts. First is part A, that is employability skills, and second one is part B, that is subject skills. Okay, so there are 6 units in your subject skills and there are 5 units in your employability skills. So today we are going to start our first unit of employability skills. Okay, so हमारी first unit है communication skills. So today we will learn about some various methods of communication. हमारे बहुत सारे methods होते हैं communicate करने के लिए. Okay, so communication means exchanging ideas, opinions or information among people. People use different methods of communication to express themselves. तो कम्युनिकेशन मतलब होता है कि हम अपने आइडियाज़ को क्या करें, एक्सचेंज करें. आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच में एक्सचेंज करना. ठीक है, तो एक्सचेंजिंग ऑफ द आइडियाज़ इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. सो हम कोई भी आइडिया या फिर ओपिनियंस लोगों के बीच में जो एक्सचेंज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. सो people use different methods of communication to express themselves. So people different methods use करते हैं अपनी feelings को express करने के लिए. Okay, so उन्हें हम कहते हैं communication. Now there are 3 basic methods of communication. First is verbal communication, second one is non-verbal communication, and third one is visual communication. So first one is verbal communication. So it involves the use of words in delivering the intended message. Words are the most accurate and powerful tools to express and share ideas. So verbal communication क्या होते हैं, ये involve करते हैं हमारे words को. It involves the use of words in delivering the intended message. Intended message means हमारी जो भी accurate message हम deliver करना चाहते हैं तो हम उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके कोई भी मैसेज डिलीवर कर सकते हैं. ओके, वर्ड्स आर दी मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल्स टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडियाज़. सो वर्ड्स हमारे एक एक्यूरेट और पावरफुल टूल हैं जिसके थ्रू हम अपनी कोई भी फीलिंग्स को या फिर हमारी कोई भी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर 2 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के भी 2 प्राइमरी फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ओरल कम्युनिकेशन. सो द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. सो जिस प्रोसेस में हम अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को बोल के एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, थ्रू स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए वर्ड्स के थ्रू अगर हम अपनी फीलिंग्स को या अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन. इट इज़ अ मोर नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैन द रिटन फॉर्म. सो ये हमारा बहुत ज़्यादा नेचुरल फॉर्म होता है ओरल कम्युनिकेशन दैन द रिटन फॉर्म. लिखने वाले फॉर्म से ज़्यादा हमारा नेचुरल फॉर्म क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन. The most significant advantage of oral communication is that it provides immediate feedback and clarification. So हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन का वो ये है कि हम जैसे ही क्लैरिफिकेशन करते हैं हमें इमीडिएट क्लैरिफिकेशन मिलता है और फीडबैक मिलता है. ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इमीडिएट फीडबैक और क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करता है. बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर टेक टर्न्स टू स्पीक एंड enter into a kind of dialogue to make the whole communication process purposeful. So जो भी listener है और जो speaker है, ठीक है, take turns to speak and enter into a kind of dialogue. तो वो जो भी बोलते हैं और फिर सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे communication process को एक purposeful बनाते हैं. Okay, now second one is written communication. So it involves sending messages in the form of written words to convey information. It is the most formal form of communication. It is an innovative activity of the mind that involves a careful choice of words and their placement in the correct order. So written communication में हम क्या कहते हैं, it involves
sending messages in the form of written words to convey information. So कोई भी information को convey करने के लिए ये एक written words के फॉर्म में हम messages convey करते हैं. ओके, अपनी कोई भी information अगर हमें किसी भी पर्सन को पहुंचानी होगी तो हम किसके थ्रू करेंगे? रिटर्न वर्ड्स के थ्रू. ओके, इट इज़ अ मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक फॉर्मल फॉर्म है हमारे कम्युनिकेशन का. और इट इज़ एन इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट इन्वॉल्व्स अ केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड देयर प्लेसमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर. सो एक ये इनोवेटिव एक्टिविटी है हमारी माइंड की कि हम किस तरीके से अपने वर्ड्स को केयरफुली चॉइस करेंगे. ओके, चूज़ करेंगे और उन्हें एक करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे. ओके, एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स एक्सेट्रा. सो हमारे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लेटर्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, रिज्यूम्स लिखते हैं. सो इन सभी चीज़ों में जो भी हम अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? एक करेक्ट ऑर्डर में और अपने खुद के चॉइस वर्ड से. ओके, now second one is non-verbal communication. So non-verbal communication means communicating without the use of words, oral and written. It can be effectively used to enhance our verbal communication. It includes our body language, gestures, facial expressions, eye contact, pointing fingers, etc. So non-verbal communication means होता है communicating without the use of words and oral and written. मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे लोगों से? विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स, बिना वर्ड्स के यूज़ किए. ठीक है, बिना वर्ड्स को यूज़ किए. ओरल में भी हम इसे यूज़ नहीं करेंगे. ओके, और रिटर्न में भी यूज़ नहीं करेंगे. तो हम कैसे करेंगे? इट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू एनहांस अवर वर्बल कम्युनिकेशन. इट इंक्लूड्स अवर बॉडी लैंग्वेज. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा क्या आता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है. ठीक है, इसमें हम बोल के नहीं करेंगे अपना कम्युनिकेशन, लिख के नहीं करेंगे. कैसे करेंगे? अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू. गेस्चर्स, फेशियल्स एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पॉइंटिंग फिगर्स, ये सारे क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. ओके, सो नॉन वर्बल साइंस कैन कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. How we say something is often more important than what we say. So non-verbal signs can convey thoughts and feelings in the absence of verbal communication. So जब हम verbal communication नहीं करते हैं, ठीक है, verbal communication के absence में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? non-verbal signs का यूज़ कर रहे हैं अपने thoughts और feelings को convey करने के लिए. ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है. हाउ वी से समथिंग, हम किस तरीके से कह रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इससे कि हम क्या कह रहे हैं. ओके, सो इज़ ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी से. जो भी हम कह रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से उस अपने बात को कह रहे हैं. ओके, सो नाउ थर्ड वन इज़ विजुअल कम्युनिकेशन. So any verbal or non-verbal communication utilizing the sense of sight is known as visual communication. So कोई भी verbal या non-verbal communication को use करने के लिए हम क्या करते हैं? sense of sight का use करते हैं. Okay, so इसे हम कहते हैं visual communication. So visual communication skills involve the judicious use of visual aids to make a penetrative and lasting impact on a receiver's mind. So visual communication skill क्या इन्वॉल्व करता है? judicious use. judicious means मतलब बिल्कुल करेक्ट. ओके, एक करेक्ट यूज ऑफ visual aids to make a penetrative and lasting impact on receiver's mind. जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे, जो भी हम विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे करेंगे. ओके, सो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी हम कन्वे करते हैं अपने मैसेज को, तो रिसीवर्स के माइंड में बिल्कुल एग्जैक्ट वो बातें लास्टिंग करती है. मीन्स बहुत लास्ट टाइम तक उसे उसके माइंड में इम्पैक्ट करती है. ओके, नाउ ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वाइट एंड ब्लैक बोर्ड्स एक्सेट्रा आर द डिफरेंट types of visual aids that help in conveying
a message effectively. सो ग्राफ्स, चार्ट्स, पावर प्रेजेंटेशन, ये सारी क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं विजुअल कम्युनिकेशन के, ओके, जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेटर कैन इम्पैक्ट नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक्स to the students in an effective manner with the help of a smart board, picture on a or a diagram. So एग्जाम्पल है हमारा कि कोई भी एजुकेटर अपनी नॉलेज को इम्पैक्ट करने के लिए, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को किसी एक इफेक्टिव मैनर में, तो वो किसका यूज़ करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड की. ओके, सो स्मार्ट बोर्ड की हेल्प लेते हैं, पिक्चर की हेल्प लेते हैं और डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू वो अपने किसी भी टॉपिक को इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकें. ओके, सो जिससे हमारे स्टूडेंट्स को ईजिली वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएं. ठीक है, तो हमारे स्मार्ट बोर्ड, पिक्चर और डायग्राम, ग्राफ्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ये सारी क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे विजुअल कम्युनिकेशन के. ओके, so dear students, as you have already learned these topics in the previous class also, आपने 9th क्लास में भी ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो इसे आज हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं. हमारा नेक्स्ट है बेसिक राइटिंग स्किल्स, कि हमारी बेसिक राइटिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए. ओके, सो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर दी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. हमारी 7 C's कम्युनिकेशंस कौन से होते हैं. ओके, सो there are 7 elements of communication which are popularly known as the 7 C's of communication. They are regarded as a checklist that helps to improve the professional communication skills and increase the chances that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. So, हमारे पास 7 elements हैं communication करने के लिए which are popularly known as the 7 C's of communication, जिसे हम क्या कहते हैं, 7 C's of communication कहते हैं. ओके, सो 7 एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं. ओके, उन्हें हम कहते हैं 7 C's of communication and they are regarded as a checklist that helps to improve the professional communication skill. So ये 7 C's of communication हमें हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल के लिए एंड इंक्रीज द चांसेस दैट द मैसेज विल बी अंडरस्टूड इन एग्जैक्टली द सेम वे. और ये इंक्रीज करते हैं इन चांसेस को कि हमारा जो भी मैसेज है वो एग्जैक्टली समझा जाए सेम वे में, जिस वे में हम अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं. ओके, सो देयर आर 7 C's of communication. First one is clear. The message should not be vague or confusing. So message क्या होना चाहिए, unclear नहीं होना चाहिए. Vague means unclear या फिर हम कह सकते हैं unreadable. Okay, so हमारा मैसेज unclear नहीं होना चाहिए, confusing नहीं होना चाहिए. हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, clear होना चाहिए. Now second one is correct. The message should be free of any grammatical and spelling mistakes. हमारा मैसेज grammatical फ्री होना चाहिए. ठीक है, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. ऑल्सो द फैक्ट्स मेंशन इन द मैसेज मस्ट बी रिलीवेंट एंड एक्यूरेट. और हमारे जो भी फैक्ट्स मेंशन होंगे मैसेज में वो कैसे होना चाहिए, रिलीवेंट होने चाहिए. उसी मैसेज से रिलेटेड होने चाहिए हमारे फैक्ट्स और एक्यूरेट होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. थर्ड वन इज कंप्लीट. The message should be complete, that is, it must include all the required information. हमारा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें सारी वो चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए. द कंप्लीट मैसेज आंसर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट रिसीवर्स माइट हैव, thus reducing the need for future correspondence. So अगर हम किसी भी मैसेज में अपना कंप्लीट आंसर देंगे, ठीक है, अपने सारे क्वेश्चंस का, सो रिसीवर्स के पास क्या होगा, उसके पास चांसेस होंगे कि वो अपने फ्यूचर, थस रिड्यूसिंग द नीड ऑफ फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस, मीन्स वो फ्यूचर में अगर उनके पास कोई भी डाउट्स होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चंस होंगे, उनको वो सारे आंसर्स हमारे इस मैसेज के थ्रू
मिल जाए। तो इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए, हमारा मैसेज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कि कोई भी क्वेश्चंस अगर उसमें से अराइज हो तो हमारा उसमें सारे आंसर्स होने चाहिए। ठीक है ना। फोर्थ वन इज कंक्रीट। सो द कंटेंट शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमारा जो कंटेंट है, जो मैसेज है, वो कैसे सपोर्ट करना चाहिए, उसमें फैक्ट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए और फिगर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज कंसाइज। सो द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। सो प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट, हमारा मैसेज एग्जैक्ट होना चाहिए। जो भी हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमारे पास, हम उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने चाहिए हमें, एंड टू द पॉइंट। A short and brief message helps to retain the receiver's attention and saves time. So हमें जो भी मैसेज कन्वे करना है हमें टू द पॉइंट वर्ड्स लिखने हैं। ओके, हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, जो भी हम वर्ड्स बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं। सो अ शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज हेल्प्स टू रिटेन द रिसीवर्स अटेंशन। तो हमारा मैसेज अगर शॉर्ट होगा और ब्रीफ होगा, ओके, तो हमारे रिसीवर्स का टाइम भी सेव होगा और उसका हम अटेंशन भी ले सकते हैं। नाउ सिक्स वन इज कंसिडरेशन। द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन, नॉलेज, mindset, background, etc. to communicate effectively. So the sender must take into consideration to the receiver's opinion. So sender को क्या करना है, उसके रिसीवर्स के ओपिनियन को कंसिडर करना है। ओके, मीन्स सेंडर को ये पहले ही देखना है कि रिसीवर्स के ओपिनियन को कंसीडर करना है। ओके, कि रिसीवर्स के ओपिनियन को कंसीडर करना है, उसके नॉलेज को कंसीडर करना है, माइंडसेट, उसके बैकग्राउंड को, हर चीज़ को कंसीडर करके ही मैसेज को लिखना है। ठीक है, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो ईजिली हो पाए, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ओके, नाउ सेवेंथ वन इज कोर्टियस। So the sender must consider feelings and viewpoints of the receiver while drafting the message. Sender को क्या करना है, कंसीडर करना है फीलिंग्स और जो भी व्यू पॉइंट्स ऑफ द रिसीवर, रिसीवर की जो भी फीलिंग्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, उन सभी को कंसीडर करना है सेंडर ने वाइल ड्राफ्टिंग द मैसेज। मैसेज को ड्राफ्ट करने से पहले, सो मैसेज को ड्राफ्ट करने से पहले सेंडर को ये चीज़ें कंसीडर कर लेनी है कि हमारे जो रिसीवर हैं उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो दिस वन इज courteous. So dear students, that's all for today. Further topics of this unit we will discuss in the next class. Thank you.